Assalamu alaikum students. In this class today we'll revise the three topics that we have studied and covered in our previous lectures. So it's a sort of a revision class as well. And at the end of this class we'll have also a question answer session. And if somebody is shy or like that a recording will be on YouTube, then I tell you that only first portion, when all of you are silent and I am only speaking, this portion will be available on YouTube. And when the questions and answer session will start, then I'll stop recording it. Therefore, feel free to ask questions. And before asking a question, definitely I'll unmute, or you can yourself unmute. Right, and now I think maximum participants have joined. तो उसमें सबसे पहले जो हमने पढ़ा था, उसमें अगर आपको रिकॉल करें तो वो चीज़ थी जनरेटिंग आइडियाज़. तो जनरेटिंग आइडियाज़ इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक. और किस लिए ये किस जनरेटिंग आइडियाज़ किस लिए, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आपको बताता चलूँ कि वी आर स्टडीइंग द सब्जेक्ट एकेडमिक राइटिंग, and in this academic writing you people will get techniques, methods, skills, how to write well for your academic purposes. Definitely there are different types of write-up that you have to do. For example, you have to write an essay. Mostly students have to write an essay or sometimes a paragraph. It's a short version. Then sometimes might be in the coming semesters you will have to write your longer assignments like that of 15 to 20 pages. Sometimes they are research based or sometimes they are without research, just your own ideas. The shortest instance of writing academic writing is that sometimes you have to write an application, sometimes for leave, sometimes for some readmission, or sometimes there are different occasions may arise for your this purpose. And the biggest occasion might be that if you are doing some research at MPhil or PhD level, then you have to write your thesis. That is the biggest thing that you can do in writing. The shortest thing is just like an application, or the medium version is some assignment. And whenever you have to write, the first step for that is generating ideas. तो जब भी आपने कुछ भी लिखना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो चीज़ चाहिए, जो चीज़ रिक्वायर्ड है, तो that is ideas. So how you have to generate ideas? The first notes or that file I shared with you, that was creating ideas. You can refer to that if you have got it's a printer thing that you can open it and you can see it. That the first thing in that is brainstorming. Brainstorming एक आइडियाज़ को क्रिएट करने का एक तरीका है, आइडियाज़ को जनरेट करने का, कि आप अपने माइंड पे जोर देते हैं और सोचते हैं कि इस चीज़ के बारे में क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या बातें हो सकती हैं. तो उसके लिए आप अपने आप को कुछ टाइम देते हैं. फॉर एग्जांपल सारी चीज़ें माइंड से निकाल के जो इररिलेवेंट लाइक दैट, टोटली माइंड को फ्री अप करके तो बैठ जाते हैं कि 1 hour 15 minutes, like any length of time,
तो then you think about your particular topic. Or to help your memory, agar you have got very good memory, you have got a retentive memory, so then you can retain things in your mind, or other in other way you can just write down those points जो आपको ख्याल आ रहे होंगे, सोच के जो लिख रहे होंगे, तो उसको आप points अपने लिख सकते हैं. So those points will be your ideas. इसी से सिमिलर डिफरेंट जो नेक्स्ट जो मैथड बताया था कि आइडियाज को कैसे जनरेट करना है, तो दैट इज फ्री राइटिंग. तो फ्री राइटिंग में आपने क्या करना है कि एक टाइम, फॉर एग्जांपल 1 hour लेना है, और यू हैव टू जस्ट स्टार्ट राइटिंग, राइट विदाउट स्टॉपिंग. सर उसकी मैं एग्जांपल पहले भी दी थी कि जस्ट लाइक इन योर एग्जाम, तो एग्जाम में कुछ आ रहा है नहीं आ रहा कुछ भी, तो मीन्स के आप कोशिश होती है कि पूरी शीट भर दें, और जितना टाइम आपके पास अवेलेबल है तो वो सारा टाइम आप उसमें लिखते रहें कि आप उसको रुके ना. तो सेम आपने इसमें फ्री राइटिंग में भी यही करना है कि आपने रुके बगैर लिखते जाना है, तेज गाम की तरह. तो नेक्स्ट है, उसके बाद जो नेक्स्ट एक टेक्निक थी टू जनरेट आइडियाज, दैट वाज लूपिंग. तो लूपिंग इज अ फॉर्म ऑफ रिकर्सिव एंड increasingly directed free writing that narrows or focuses a topic in 5-minute stages or loops. तो लूप से लूपिंग जो है कि दैट कॉल, इसको सर्कल में यानी कि काम करना, रेपिटेशन, डिफरेंट स्टेजेस को जो रिपीट करना, रेपिटेशन, दैट इज लूपिंग. तो इसमें जैसे कि जैसे फ्री राइटिंग की 5 मिनट पहले फ्री राइटिंग की, कि फिर उसको आप अपने लिखे हुए को आप पढ़ते हैं, उसमें से कुछ पॉइंट ढूंढते हैं, फिर उसको आपको दोबारा से फ्री राइटिंग करते हैं या ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, सोचते हैं, फिर लिखते हैं. तो मीन्स के आइडियाज को आप जब उसमें रिपीट कर रहे होते हैं, रेपिटेशन से, देन यू डू थिंग्स. तो दिस इज लूपिंग दैट यू डू. उसके बाद आ गया था लिस्टिंग, इफ यू कैन रिकॉल. तो नेक्स्ट चीज थी लिस्टिंग. लिस्टिंग भी इसी तरह से, जैसे उसकी एग्जांपल लाइक दैट, इफ व्हेन यू हैव टू गो टू द मार्केट, भी आपने चीजें लेनी है, अगर ज्यादा चीजें लेनी हो तो अब ये नहीं कि आप जाए कहीं के अच्छा बाजार चले जाते हैं, जो चीज सामने आई तो वो लेते जाएंगे, ऐसा भी समटाइम्स करते हैं. लेकिन यूजुअली एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप क्या करते हैं कि अपनी एक ग्रोसरी की या जो भी आइटम्स व्हाटएवर यू हैव टू बाय, तो उसकी आप एक लिस्ट बना लेते हैं. इन द सेम वे जैसे आइडियाज आपको मिल रहे हो, आप उसको एक उसकी लिस्ट बना दें, लिस्टिंग बनाते जाए, उससे रिलेटेड जो है कि चीजें उसमें आप लिखते जाए. उसके बाद है कि क्लस्टरिंग और मैपिंग. क्लस्टरिंग, also called mapping, is a way of building on the ideas generated by free writing or listing or organizing those ideas into visual diagram or chart. अब इसमें से एड्रेस जो इस टॉपिक में वो है चार्ट या विजुअल रिप्रेजेंटेशन. उनको अपने आइडियाज को आपने इस तरह से लिखना है कि जिस तरह कोई ग्राफ बन जाता है, कोई चार्ट बन जाता है. चार्ट की डिफरेंट किस्में होती हैं, इन द कमिंग डेज विल डिस्कस दोस. कि फॉर एग्जांपल बार ग्राफ चार्ट है, ग्राफ बार्स होते हैं जिसमें, या उसमें पाई चार्ट है, वो सर्कल बना होता है, उसको डिफरेंट सेक्टर में डिवाइड किया हुआ होता है, तो दैट इज कॉल्ड पाई चार्ट. या इसमें जो है कि और भी वेज हो सकते हैं कि उसको आइडिया, जो अपने आइडियाज, जो आपका डेटा है, उसको आप जो है कि किस तरह से आपने दिखाना है. अच्छा, उसके बाद जो है कि एक लास्ट वाला था, उसका मैंने बताया था भी, यू कैन इवन जो उसके लास्ट वाले क्वेश्चन है उसको मैं छोड़ रहा हूँ कि लास्ट वाले टॉपिक को, इसलिए कि वो पहले वाले की रेपिटेशन और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. इसलिए इसमें जो लास्ट टॉपिक वैसे जो अपने तौर पे हम कह सकते हैं, तो दैट इज रिपोर्टर्स क्वेश्चन. ये उसका नाम है कि रिपोर्टर्स क्वेश्चन. इस मेथड को इसलिए कहा गया है कि जब कोई
वाकया हो जाता है तो जो अखबारी रिपोर्टर वहां पे जाते हैं तो वो अपनी एक तरह से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में करते हैं कि ये वाकये में कौन है, कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ, कब हुआ, तो क्यों हुआ, तो इस तरह के वो क्वेश्चंस करते हैं। तो आप भी अपने जो टॉपिक जिसके बारे में आपको आइडियाज चाहिए तो खुद से ये क्वेश्चंस बना के उनके जो आंसर लिखेंगे तो वो आपका उस टॉपिक के बारे में एक आइडियाज आपके पास कलेक्ट हो जाएंगे। तो दिस वाज अ वे हाउ यू जनरेट आइडियाज। तो ये पहला टॉपिक था। सेकंड था हमारा कि जनरेटिंग आइडिया। उस जनरेटिंग आइडिया के बाद आपने ऑडियंस को जो है कि वो अपने करना है आइडेंटिफाई कि ऑडियंस में भी डेफिनेटली जिसको आप बात सुन रहे हैं वो ऑडियंस आपके रीडर्स भी हो सकते हैं। तो उनको जनरली एक टर्म में जो है कि उसको हम ऑडियंस कह रहे हैं। तो ऑडियंस जो है कि वो नॉन ऑडियंस भी हो सकते हैं, अननोन भी हो सकते हैं, जिनको आप जानते हैं और जिनको नहीं जानते ये भी हो सकते हैं। कि नॉन ऑडियंस की एग्जांपल में आप खुद हो सकते हैं, टीचर है, फैमिली मेंबर है, फ्रेंड हो सकते हैं, या आपके क्लास हो सकती है, या आपका कोई ग्रुप हो सकता है, या आपका पूरा जो एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है वो हो सकते हैं, या कोई एक वेल नोन पर्सनैलिटी हो सकती है। यानी वन साइड भी आपका ये नोइंग हो सकता है कि आप तो जानते हो तो वो आपको नहीं जानता, तो दैट इज डिफरेंट थिंग। तो अननोन ऑडियंस जो है कि वो उसमें कोई एडल्ट हो सकता है, कोई चिल्ड्रन उसमें आ सकते हैं, किसी पर्टिकुलर ग्रुप उसका हो सकता है, यानी कि एक टीनेजर्स लाइक दैट, या उससे प्री टीन्स हो सकते हैं, या कोई भी आपका जो उस आपकी राइट आप में इंटरेस्टेड हो सकता है, तो वो उसके सारे ऑडियंस हो जाएंगे। तो ऑडियंस को देखते हुए यू हैव टू अडेप्ट योरसेल्फ कि अपने आप को आपने उसके मुताबिक ढालना है। कि डेफिनेटली जब आप कोई बात कर रहे होते हैं तो बात करने का मकसद होता है कि ऑडियंस तक आपका मैसेज इफेक्टिवली जाना चाहिए। तो उसके लिए आप फिर ये करते हैं कि उसको आप अच्छे तरीके से या बेस्ट पॉसिबल वे से किस तरह से आपकी बात इफेक्टिवली पहुंच सकती है, तो यू अडॉप्ट दैट वे। दैट इज मीन्स यू हैव टू अडॉप्ट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस। To adapt the content of your writing or to address the main concerns of your audience. If you know your readers are specialists in a particular area, the writing style should acknowledge this and differ from an article written on the same topic for the general public. तो जब आप किसी चीज के लिए लिख रहे हैं तो अगर तो समटाइम्स वो किसी फील्ड को ऑलरेडी जानते हैं तो उस चीज को आप एक्नॉलेज करते हुए उनके नॉलेज के अंडरस्टूड होगी बातें कुछ जो उनको पता होंगी, तो आप उसकी बेस पे नेक्स्ट बात कर सकते हैं। या समटाइम्स के एक जनरल पब्लिक के लिए भी वो हो सकती है चीज, यानी समटाइम्स एक पर्टिकुलर फील्ड की वो बात हो सकती है, या फिर वो सभी से रिलेटेड हो सकती है वो बात। तो उसके बाद अपने ऑडियंस को जानने के बाद फिर आपने देखना है कि किस तरह से अपनी जो वॉइस है आपने किस तरह से उसको यूज करना है। वॉइस मीन्स कि अपने अगर डायरेक्ट है बोलना कैसे है या लिखना कैसे है, वर्ड्स हैं, उसकी टोन है, वर्ड्स के डिफरेंट वर्ड्स की कैटेगरीज होती हैं। तो इस तरह से बोलने के लिए वर्ड्स हैं फॉर्मल, इनफॉर्मल, लाइक दैट। लिखने में भी वही चीज आ जाती है, जस्ट मीडियम चेंज है, बाकी आपके मैसेज जो है कि वो सेम रहते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं कि however this same style is not appropriate in professional situation where a more formal tone is expected. तो sometimes यानी कि informal और sometimes formal informal switching चलती रहती है कि according to your audience you adapt yourself. तो ये थोड़ा सा इसमें बताया कि आपने किस तरह से अपने ऑडियंस के मुताबिक अपने आप को आपने जो है कि मॉडिफाई करके आपने अपनी चीज़ें जो है कि उस तरह से उनको लिखनी होगी। तो उसके बाद चीज़ आ जाती थी, दूसरी चीज़ जो हमने की थी नेक्स्ट, वो अगर उसमें मुझे याद हो जिसमें लॉन्ग मैसेज पे काफ़ी लोग हंस भी रहे थे,
भाई ये क्या सर ने भेज दिया, पढ़ना पड़ जाएगा। ओके, सॉरी, दिस थिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। तो नेक्स्ट थिंग, द लास्ट थर्ड थिंग इज ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन। तो ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन में आपने अपनी इंफॉर्मेशन को, जितने भी आपके पॉइंट्स आ गए, तो अब आपने ये नहीं कि उनको रैंडमली ऐसे लिख दिया, जो पहले ख्याल माइंड में आया था वही लिख दिया, नहीं, उसकी आप कोई तरतीब बनाते हैं, तरतीब से आपने उसको लिखना है। तो उसमें जो बात बताई थी कि आपने जो उसकी ऑर्डरिंग करनी है, वो टू वे से ऑर्डरिंग हो सकती है, कि एक उसकी हो सकती है ऑर्डरिंग असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर। उसमें अपने हायरार्की चीज़ों की होती है कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, और फिर आपने इम्पोर्टेंट से स्टार्ट लेना है, या स्पोर्टिंग आइडिया से स्टार्ट लेके एंड में जो है कि आपने जाके फिर अपना मेन आइडिया जो है कि वो बताना है। एंड आई थिंक दैट इज दैट सफिशिएंट फॉर टुडे। इसको मैं जस्ट स्टॉप इट रिकॉर्डिंग।